કારેલીબાગ વિસ્તારમાં ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની જાહેર સભા। ભાજપ પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા મંગળવારે રાત્રે શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં વિજય સંકલ્પ જાહેર સભા સંબોધી। આ દરમિયાન તેમણે વિકાસ ગાથા સાથે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ પાર્ટી ઉપર શાબ્દિક પ્રહારો કરી ઝાટકણી કાઢી હતી। એમણે રાવપુરા બેઠક ઉપરથી ભાજપના ઉમેદવાર બાલકૃષ્ણ શુક્લને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા જનતાને અપીલ કરી। શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તાર ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે 144 રાવપુરા વિધાનસભા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર બાલકૃષ્ણ શુક્લના પ્રચાર સંદર્ભે અભયસિંહ રાઠોડના કંઠે ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન સાથે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ વિજય સંકલ્પ જાહેર સભા સંબોધી હતી। દરમિયાન શહેર ભાજપના પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહે કહ્યું હતું કે આયુષ્માન કાર્ડનો શ્રેય જેપી નડ્ડાને સમર્પિત છે, જેનો સમગ્ર દેશના લોકોને અકલ્પનીય લાભ મળ્યો છે। બાળુ શુક્લ 1 લાખથી વધુ મતની સરસાઈથી જીત મેળવશે તેવો પ્રણ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો। જ્યારે ઉમેદવાર બાલકૃષ્ણ શુક્લએ કહ્યું હતું કે 1995થી વડોદરામાં ભાજપનું શાસન છે। તમામ ચૂંટણીઓમાં વડોદરા ભાજપને ભવ્ય જીત અપાવે છે। સંગઠન સર્વોપરી છે, સાથે જનતાનો પણ હું આભારી છું। આ પ્રસંગે જેપી નડ્ડાએ કહ્યું હતું કે ચૂંટણીમાં ઈવીએમનું બટન કરોડો લોકોનું ભવિષ્ય નક્કી કરે છે। હોસ્પિટલમાં તોતિંગ બિલોમાં રાહત આપવા તેમજ પ્રજાની સમસ્યાને વાચા આપવા માટે સ્વાસ્થ્ય મંત્રી બન્યા બાદ પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આયુષ્માન કાર્ડ યોજના લોન્ચ કરી હતી। આજે 50 કરોડ લોકોને સરેરાશ 5 લાખની સહાય પહોંચાડી છે। હવે આયુષ્માન કાર્ડમાં આગામી દિવસોમાં 10 લાખની સહાય આપવામાં આવશે। હાલ ચીનમાં વિદ્રોહ છે। લોકડાઉનના કારણે જ્યારે મોદીએ કોરોના મુક્ત દેશ બનાવી માસ્ક તથા લોકડાઉનમાંથી છુટકારો અપાવ્યો, અગાઉ જરૂરી દવાઓ ભારત પહોંચવામાં વર્ષોનો વિલંબ થયો હતો, પરંતુ ભારત માત્ર 9 મહિનામાં વેક્સિન બનાવી વિક્રમ સર્જ્યો છે। એન્ટી રેડિકલ સેલની રચના કરી આતંકનો ખાત્મો કરીશું। ત્યારે કોંગ્રેસને આડે હાથે લેતા કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જોડી શકતી નથી, દેશ જોડવા નીકળી છે। કોંગ્રેસનું આતંકી તરફી હંમેશા સમર્થન રહ્યું છે। તેમને દેશવાસીઓ પાસે માફી માંગવી જોઈએ। મેઘા પાટકર સરદાર સરોવર ડેમમાં રોડા નાખ્યા હતા। તદુપરાંત આપ પક્ષ ઉપર તેમણે પ્રહાર કર્યા કે બનારસ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ગોવામાં ચૂંટણી લડી ડિપોઝિટ ગુમાવી, હિમાચલમાં પણ તે જ થશે અને વડોદરામાં પણ તેમની ડિપોઝિટ જપ્ત કરવાની છે। જનતાને અપીલ છે કે સબક શીખવાડજો, મતદાન કરી તેમના રાજમાં કટ્ટર ઈમાનદારને જ જેલમાં મસાજની સેવા મળી રહી છે। આ પ્રસંગે સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, ધારાસભ્ય સીમાબેન મોહિલે, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, ભાજપ પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ ભટ્ટ, શહેરના ભાજપ પ્રમુખ વિજય શાહ, મહામંત્રી સુનિલ સોલંકી, કાઉન્સિલરો, હોદ્દેદારો તથા કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। पंडित दीनदयाल जी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों युवाओं को, कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिनके से कि हर कार्यकर्ता अब धीरे धीरे खुद नेता बनने लगा है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ नड्डा जी यहाँ है तो मैं हमारे विस्तार के और बड़ौदा शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ओर से उनको अभिवादन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और आभार मानता हूं। 1995 से बड़ौदा शहर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 1995 से हर चुनाव, फिर वो पार्षद का हो, विधानसभा का हो या सांसद का हो, रिकॉर्ड वोट से हम जीते जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला अगर कोई है तो वो गुजरात है, तो वैसे ही गुजरात की अगर हम प्रयोगशाला समझे तो बड़ौदा शहर है। इसलिए कि यहां से कुछ चीजें ऐसी बनी है कि वो सीमा चिन्ह हो गई है। છેલ્લા 50-60 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સિંચન કરીને કાર્યકર્તાઓને ઘડનાર એવા વડોદરાના સિનિયર મોસ્ટ કાર્યકર્તા અને ગુજરાત પ્રદેશના નેતા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સુખડિયા, મારા બેન સીમાબેન સાથે ખાસ આ કાર્યક્રમ માટે અત્રે આવેલ
પ્રેમભાઈ શુક્લાજી, અમે તો આમ નામથી ભાઈ જ છે, પણ રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે આપણા સુનિલભાઈ, જસવંતસિંહજી, રાકેશભાઈ અને અત્રે ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ બહેનો અને નગરજનો, ખરેખર આજનો દિવસ એ વડોદરા શહેર માટે ખૂબ મહત્વનો છે. કારણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ પણ ચૂંટાયેલા કાર્યકર્તા કે નેતા કરતા પણ संगठन पद सर्वोच्च है. और मेरे लिए और पूरे बड़ौदा वासियों के लिए ये परम भाग्य की बात है कि जैसे कि यही की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब माननीय जीतूभाई सुखड़िया अध्यक्ष थे, तब राजनीति में महिलाओं का आरक्षण पहली बार भारतीय राजनीति में अगर कहीं लिया गया हो, एक राजकीय प्रस्ताव अगर पारित किया गया हो, तो बड़ौदा शहर से किया गया है. हम सभी जानते हैं कि बड़ौदा ये गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि यहां से नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में यहां से चुनाव लड़ा था, क्योंकि बड़ौदा उनका कर्म क्षेत्र है. संघ के प्रचारक की उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में निभाई, उसकी शुरुआत भी बड़ौदा से हुई थी. बड़ौदा शहर के हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और हर कार्यकर्ता को वो मिलते हैं. अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, आपको पता है, मीडिया में हमने सुना, देखा कि ऐसे जो उनके पुराने सहयोगी थे, उनके साथ उन्होंने गपशप की. हर कार्यकर्ता को नाम से जानना, और यहाँ जो मीडिया के मित्र है वो सभी को नाम से जानते हैं. और नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक यानी खासियत है, यूएसपी है, कि यहाँ के पत्रकार मित्र भी उनसे फोन पे बात कर सकते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी कर सकते हैं. तो ऐसी पुण्य भूमि पर मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और विनोद तावड़े जी का बहुत स्वागत करता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ. अस्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम. આજે વડોદરા શહેરમાં રાવપુરા વિધાનસભાના તમામ કાર્યકર્તાઓને, નગરજનોને સંબોધન કરવા માટે અને માર્ગદર્શન કરવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કરોડો કાર્યકર્તાઓના માર્ગદર્શક, પથદર્શક અને જેમને સંગઠનમાં અનેકવિધ નવા પ્રયોગો કરીને પેજ સમિતિ સુધીના કાર્યકર્તાઓને ખૂબ સક્રિય કર્યા છે, એવા જગત પ્રસાદ નડ્ડાજી, સાથે આપણા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી વિનોદ તાવડેજી, વર્ષોથી એટલે કે મારા નાનપણથી જેમની સાથે મેં કામ કરેલું છે, જો મારા માર્ગદર્શક રહ્યા છે, એવા પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી ભાર્ગવભાઈ, अपना लोक लाडीला सांसद मारा मोटा बेन रंजनबेन, वडोदरा शहरना अध्यक्ष मारा मित्र डॉक्टर विजयभाई, राज्य सरकारना मंत्री, धारासभ्यश्री અને જેના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે રાવપુરા વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તેવા રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીજી, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज विश्वामित्र नदी के तट पर बड़ौदा शहर में आने का सौभाग्य मिला है. और यह संस्कृति की नगरी, यह शिक्षा की नगरी, यह विकास की नगरी, ऐसी नगरी में मुझे आने का मौका मिला है. सबसे पहले तो मैं यहाँ की प्रबुद्ध जनता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ. मित्रों, आप सब लोग यहाँ आए हैं मेरी बात को सुनने के लिए, लेकिन मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात को समझ गया हूं कि जो मैंने बोलना है उसको आपने पहले ही मान लिया है. इसलिए अब जो मेरा बोलना है वो बोलने के लिए बोलना है. आपने तो मन बना ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें जरूर आपसे करना चाहूंगा. इसकी व्यवस्था की गई. ऐसे मेधा पाटकर के साथ चलने वाले लोगों को ये भारत जोड़ेंगे क्या? ये गुजरात जोड़ेंगे क्या?
एक और पार्टी आई है आजकल, कागज पे लिख लो, देख लो, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको इनका रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूं। बनारस गए थे चुनाव लड़ने, पिट कर आए, पिट के माफी मांगी, कानों को हाथ लगाया कि आप नहीं जाएंगे। फिर गए उत्तर प्रदेश लड़ने, 350 सीटें लड़ने गए थे, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर गए लड़ने उत्तराखंड, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 70 सीटें हैं, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 65 सीटों पर जमानत जब्त करा रहे। फिर गए और वहां का जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है ना, वो आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। और गोवा लड़ने गए, 40 सीटें हैं, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, 35 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आ गए। और मेरी बात नोट कर लेना, हिमाचल में 67 सीट पर चुनाव लड़ा है, 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, ये आपने ध्यान रखना। और मित्रों, यहां भी आपने ऐसा ही करना है, मुझे पूरा विश्वास है। यही आपको ध्यान में आएगा। ये पंजाब का एडवर्टीजमेंट लेके गुजरात में आ जाते हैं, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट लेकर के गुजरात में आ जाते हैं। अरे भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, क्या काम तुम्हारा? लेकिन हर तरीके से राजनीति घुमाने का काम करते हैं। इनको भी सबक सिखाने का काम 5 तारीख को आपने कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, इसकी आपने तैयारी करनी। आपने आजकल देखा है ना चैनल पर, कट्टर ईमानदार कहां मिलते हैं? तिहाड़ जेल में। क्या कराते मिलते हैं? मसाज सेंटर में। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? ये है कट्टर ईमानदार। शराब का घोटाला, स्कूल का घोटाला, आपने कभी बाथरूम का और क्लासरूम का ठेका एक ही दाम पर देखा है क्या? दिल्ली में एक ही दाम पर 36 करोड़ का बाथरूम भी, 36 लाख का बाथरूम भी और 36 लाख का क्लासरूम भी। ये भ्रष्टाचार कर रखा है। 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराया। सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिख दी हैं। ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोग चाहिए क्या? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, बालकृष्ण शुक्ला जी को आप भारी मतों से भेजें और एक सही संदेश देश में भी आप भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, पता नहीं किसको जोड़ने के लिए निकली हुई है। पार्टी तो जुड़ती नहीं है, देश जोड़ने चले। टेररिस्टों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जेएनयू में नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड। और राहुल गांधी जेएनयू जाकर के कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। ये अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मतलब अफजल के कातिल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट का जज। अफजल का कातिल कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति, जिसने तय किया कि ये जो फांसी है ये सही फांसी है। तो और राहुल गांधी उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और वहां नारे लगते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे भारत को तोड़ने वाले आजकल जोड़ने निकले हैं। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। यहां बताओ, गुजरात में आए थे तो साथ में मेधा पाटकर थी कि नहीं थी? मेधा पाटकर जी थी कि नहीं थी? ये कौन है मेधा पाटकर? जिसने सरदार सरोवर डैम को 15 साल बनने से रोका। ये कौन है मेधा पाटकर? जिसने सरदार सरोवर डैम के दीवार को ऊंचा उठाने से रोका। और मोदी जी को आपने अपने बटन दबा करके मैं और कह देना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, पता नहीं किसको जोड़ने के लिए निकली हुई है। पार्टी तो जुड़ती नहीं है, देश जोड़ने चले। टेररिस्टों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जेएनयू में नारा लगता है,
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड। और राहुल गांधी जेएनयू जाकर के कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। ये अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब अफजल के कातिल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट का जज। अफजल का कातिल कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति, जिसने तय किया कि ये जो फांसी है ये सही फांसी है। तो और राहुल गांधी उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और वहां नारे लगते हैं भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे भारत को तोड़ने वाले आजकल जोड़ने निकले हैं। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। यहां बताओ, गुजरात में आए थे तो साथ में मेधा पाटकर थी कि नहीं थी? मेधा पाटकर जी थी कि नहीं थी? ये कौन है मेधा पाटकर? जिसने सरदार सरोवर डैम को 15 साल बनने से रोका। ये कौन है मेधा पाटकर? जिसने सरदार सरोवर डैम के दीवार को ऊंचा उठाने से रोका। और मोदी जी को आपने अपने बटन दबा करके आपने वडोदरा से